Why is mosquito biting me? Am I a YouTube veteran? I don't know why I'm just like little nervous to like when I come on YouTube. Does it ever drives you crazy? Except for, arey, can you see this light? What am I doing? What is happening to me? My brain is not braining. Yeah. Hi, welcome back to my channel, and thank you so much for the amazing response on the journal and diary writing. मैंने genuinely बहुत सारे comments पढ़े, and today we are going to talk about something very important, that is how much empathy is too much empathy. What is it to be an empath? What is it to just feel लिटिल टू मच. अगर कई बार आपने लोगों को आपके लिए बोलते सुना है कि ओ यू नो व्हाट चांदनी, यू आर टू मच, ओ यू लाफ टू लाउडली, योर इमोशंस, द वॉलिटिलिटी ऑफ योर इमोशंस आर टू मच, ओ दिस इज, कैन यू जस्ट like take a step back, like, you know, can you just not be this much? So I think this video is for you. So what are you gonna do is with me color. So I want you to watch this video while we just sit and unwind our day. You can remove your makeup, get in pajamas, watch this video आराम से, take a nice book, coloring book and some coloring pen and just do it, not for the sake कि आप कितने अच्छे पेंटर हो, क्या कर सकते हो कलर कॉम्बिनेशन के साथ में. I mean if you are then great. I am terrible at it, like terrible at it. I don't even know अगर ये complete होगा या नहीं, but I just want to like come sit, talk and do this. So that is the reason I'm just like here, because there's no other reason, right? I'll tell you something about myself. I am somebody who is extremely empathetic to a level where I can feel द पेन फॉर रियल. और ये मैं खुद से नहीं कह रही, ये मेरा ऑफिशियल डायग्नोसिस मैं आपको बता रही हूँ. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे बस ऐसा लगता था कि देयर समथिंग रॉन्ग इन मी, समथिंग रॉन्ग इन मी, बिकॉज आई वाज टोल्ड बाय लॉट ऑफ पीपल, ओ थोड़ा आप कंट्रोल में हंसो, थोड़ा आप ना जैसे रिसेंटली मुझे किसी ने कहा था कि ओ माई गॉड you're crying as if like somebody has died. Why are you comparing my emotions to something? It's like because you are, you know, extreme. And to be very honest, I want to be extremely, I don't know if this is a right thing to say on the internet, but a guy literally dumped me for the reason which he likes to call a mutual breakup, but it is not. Telling that, you know, your emotions are like, you know, too much and I can't deal with this and I'm not well equipped to handle you. And it does hurt, you know, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं self doubt पे आप पहुंच जाते हो. आपको लगता है कि यार मेरे में ऐसी क्या कमी है कि मतलब यू नो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ अपने इमोशंस को. और ये मैंने बहुत चीज़ें समझी, मैंने थेरेपी भी ली. सो आई एम समबडी जिससे बचपन से ही बहुत ज़्यादा इमोशंस फील होते आ रहे हैं. अगर मम्मी ने कुछ कह दिया, आई यूज़ टू लाइक गो इन द बाथरूम एंड क्राई अ लॉट अबाउट इट. ठीक है, अगर मान लो अगर दो लोगों का रोड पे झगड़ा हो गया, मैं वो देख के मुझे पैनिक अटैक आ जाता था. आई यूज़ टू शिवर, माई बॉडी यूज़ टू कॉन्स्टेंटली थ्रो सिम्टम्स. इनफैक्ट नाउ व्हेन आई लुक बैक इन माई स्कूल, आई वॉज सो सेंसिटिव. मेरे घर वालों को तो 10वीं में जब मैं पहुंची तब जाके समझा कि यू नो इसको एंग्जाइटी हो रही है, इसे डिप्रेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें. बट आई वॉज एक्चुअली थ्रोइंग सिम्टम्स सिंस आई वॉज इन सेकेंड स्टैंडर्ड. आई यूज टू वॉमिट एवरी डे. गोइंग टू स्कूल वॉज लाइक अ टॉर्चर फॉर मी. लाइक अरे यार दिस इज अ नाइटमेयर, लाइक वाई आर यू सेंडिंग मी टू स्कूल, वाई कांट वी जस्ट लाइक नॉट गो टू स्कूल. एंड आई यूज्ड टू फाइंड एवरी पॉसिबल रीजन एंड माई बॉडी यूज टू फिजिकली शो सिम्टम्स ऑल्सो कि यार क्योंकि वहाँ का जो माहौल था वो मुझे बहुत अफेक्ट करता था. व्हेन आई टॉक अबाउट इट आई फील लाइक इट्स नॉट ईजी for me to talk about it also. But yeah, so then later काफ़ी बाद में जाके मैंने बहुत साइकाट्रिस्ट बदले, मैंने बहुत थेरेपिस्ट बदले, और मुझे समझ में आया कि I am just extremely empathetic as a person. And I am a sensitive person. And I still remember I was weeping and crying and I was asking my doctor, is it bad to be this sensitive? Is it bad to be this empathetic? Is it bad to feel this much? Is that a very beautiful line? Chandni, it's not about good or bad. It's about, you know, it's just painful. And I feel like that is so true because मैंने अपने उस चीज़ के लिए बहुत अपने आप को इतना कोसा है, मैं बता भी नहीं सकती आपको कि I'll explain you, I'll give you an example. मैंने कहीं से सुना कि किसी को, और इससे बाय द वे मेरी हेल्थ एंग्जाइटी यूज्ड टू ट्रिगर अ लॉट. ओके, लाइक मैंने कहीं सुना कि किसी को किडनी स्टोन हो गया एंड द पर्सन वाज नॉट एबल टू पी. आई क्लियरली रिमेंबर दिस इंसिडेंट. ठीक है, एंड cut to in one day I felt like, oh my god, I have kidney stone and I was genuinely not able to pee. Somebody got a stroke and got a paralysis ka attack. I remember I was coming back from local and बोरीवली में जब हम रहते थे वहाँ पे मेरी लोकल ऑलमोस्ट रुक, लाइक
पहुंच घर मतलब बोरीवली पे ही रुकी, तब तक आई वाज लाइक मेरा लेफ्ट नम हो चुका है, आई कांट फील इट। लकीली 2 जन मुझे साथ में लेके एक डॉक्टर के पास में लेके गए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली रियलाइज इट्स कॉल्ड पैनिक अटैक। और मेरा पूरा लेफ्ट नम हो गया था फॉर रियल, आई कुडंट फील इट। लाइक मेरे को ऐसा लगा कि बॉस गए, खत्म, यू नो। एंड आई वाज लाइक व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी। कुछ अगर कहीं 2 लोगों का झगड़ा हो रहा है, मैंने सुन लिया, आई यूज टू पैल्पिटेट, आई यूज टू फील लाइक अरे इसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अगर किसी को एकदम हेल्पलेस देख लूँ, आई कैन नॉट सी दैट, आई कैन नॉट स्पीक एनी थिंग, लाइक आई कांट बी मीन टू एनी बडी इन माई लाइफ। लाइक इवन टुडे, अगर you know, I did everything in my capacity to stay with a particular person, right? Everything in my capacity. And I have a major fear of abandonment, which I'm still learning to deal with it. Like I have literally begged on my knees, crying, howling my eyes, and please stay. Like don't leave me, just don't leave me. And while dealing with so many multiple things like feeling too much, you know, fear of abandonment, too much empathy. But here's something that I understood out of everything. आपको सबके लिए एम्पैथी आ सकती है, पर अगर आपको खुद के लिए एम्पैथी नहीं आएगी ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। नथिंग इज गोइंग टू हैपन बॉस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज शूटिंग फॉर दिस फिल्म तू मेरी मैं तेरा, करेक्ट? एंड आई वॉज इन राजस्थान shooting for it. While I was, you know, dating a doctor, now he had his residency going on, you know, where he used to like work 36 hours a day, sometimes even more than that, constantly be in a surgery for 7-8 hours. तो मुझे ऐसा लगता था कि how can I even talk about my problem, that oh my legs are hurting because I have been dancing in heels, oh I, you know, like I इतना हैवी मैंने आउटफिट पहना है और इतनी धूप है तो मुझे चक्कर आ गए। मैं ये सब, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे उसको ये सब बता सकती हूँ while he is, you know, dealing with the actual trauma or stuff, you know, where patients are coming in at night and day, and just it is just so overwhelming, right? Like for a doctor, I used to constantly just feel like कि other person, दुनिया में मुझे लगता है सब काम करते हैं, हर इंसान काम करता है except for me. I genuinely, trust me, I mean it. It's not, फिर मैंने बहुत पढ़ने के बाद मुझे समझा कि हाँ, इट इज इम्पोस्टर सिंड्रोम दैट कीप्स मी ग्राउंडेड, बट दैट्स नॉट द थिंग, राइट? आई हैव एम्पैथी फॉर एवरीबडी एल्स. लाइक आई यूज्ड टू बी लाइक, look at a lawyer, you know, they are working, like they are running from court to arbitration to office to this, and then they hardly get time, these MNCs, and they are dealing with like how people are doing the desk job. And then I used to see like other people, I'm like, yeah, probably I'm just, I don't know, I'm not working enough or I'm not doing enough. So I used to like come back to my hotel room, and I used to like talk. So he used to ask me कि how was your day, what did you do? तो मैं कुछ बोलती ही नहीं थी उसको कभी भी, like genuinely मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है. I mean like तू बता, you know, you tell me, what did you do in your surgery, what happened today, how many patients did you see, how many patients walked in today at night. तो it was always about that. Like मेरे लिए, मतलब मुझे आज भी practically it takes a lot of time for me to understand that, you know what, I am a chosen one by God, that I can sit and I can afford to party on a Monday night. I can sit, I can chill, I can relax. I just have to think to work. My work doesn't have to be, you know, in a particular form or in a particular manner. It is just a bit different. But now, I think we are just diverting like everywhere. So basically, कहने का मतलब ये है कि मेरे को हर इंसान के प्रति एम्पैथी है. मुझे एग्जैक्टली पता है कि यू नो व्हेन लेट्स से फॉर एग्जांपल, यू नो, व्हाट इज़ अ प्रिविलेज शेमिंग. अगर हम किसी को कुछ बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, क्योंकि हर इंसान के लाइफ के जीवन के स्ट्रगल्स बहुत अलग होते हैं, अलग अलग पड़ाव पे, राइट? मैं लाइक लेट्स से 12-year-old चांदनी वाज लुकिंग एट अ 26-year-old चांदनी cribbing about the fact that, you know, oh I'm just not able to lose weight, or cribbing about the fact that oh I have a chocolate in front of me but I can't eat. She'd be like, what is wrong with her? I mean, you know, we were discussing about आज पैसों की लड़ाई हो रही थी, अभी नहीं तो है, why is she not grateful? And don't get me wrong, you know, a lot of times you feel like, oh my god, am I not being grateful for what I have? Am I not being grateful for what I have? And it's just so much in your mind that you just don't understand that what is happening, you know. It's so overwhelming constantly and you're overstimulated and just like, ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ में, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है ये? And then you just break down, क्योंकि
आपको खुद के लिए तो एम्पैथी है ही नहीं। आप खुद कितने ब्यूटीफुल हो, आप खुद कितने हार्ड वर्किंग हो, आप खुद कितने टैलेंटेड हो, खुद कितने अच्छे हो, आपको कभी ये चीज़ समझ ही नहीं आती है। सो देन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट कि मेरे पास जेन्युइनली सबके लिए एम्पैथी है बट खुद के लिए नहीं है, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड आई टेल यू हाउ। आई एक्टिवली, जब भी मुझे ये थॉट आता है कि अरे यार वो इंसान कितना काम कर रहा है, मैं तो नहीं कर रही, आई टेक अ पॉज, आई इमीडिएटली टेक अ पॉज एंड आई टेल नो चांदनी, यू आर वर्किंग। मैं मतलब जो मेरी मेड है, मैंने उनको बोला, मैंने उनको एक दिन ऐसे ही मस्ती मस्ती में बोला, आपको नहीं लगता कि दीदी काम नहीं करती, आपको नहीं लगता कि मैं काम नहीं करती हूँ? तो शी टोल्ड मी, बिना काम किए थोड़ी ना अपने आप ऐसा हो जाता है इतना सारा। मैंने कहा क्या मतलब, घर और सब गाड़ी वगैरह अपने आप थोड़ी ना हो जाता है। एंड देन आई रिमेंबर आई स्पोक टू माई अदर फ्रेंड्स, यू नो, उन्होंने मुझे बताया कि चांदनी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जिस तरह से तू किसी और से बात नहीं करती है, तू वैसे खुद से बात कैसे कर सकती है। लाइक अगर मुझे किसी और से बात करनी होती है, हम लोग इतना सोचते हैं ना, वी हैव टू बी लाइक, हम यू नो, आई विल बी काइंड टू दिस पर्सन, आई विल बी empathetic to this person, I'll be there for this person, right? Like, but we just don't realize that we are not doing that for our own selves, क्योंकि you just drain yourself. And for an empath it's very important to understand to have boundaries. Oh my god, मुझे हमेशा से लगता था कि यार ये बाउंड्री का क्या चक्कर है बॉस, मतलब बाउंड्री कैसे, मतलब बाउंड्री कहाँ से बीच में आ गई। एंड देन आई रियलाइज्ड दैट वंस यू स्टार्ट हैविंग बाउंड्रीज, आपके सारे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो भी आपको फील होता है, दैट विल ऑल बिकम टू जॉय ऑफ मिसिंग आउट समटाइम्स। पहले आई हैड अ कॉन्स्टेंट नीड ऑफ लाइक, ओ माई गॉड आई वॉन्ट फ्रेंड्स, मुझे दोस्त चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए, मुझे, एंड आई हैव मेड स्टूपिड डिसीजंस इन माई लाइफ टू जस्ट मेक फ्रेंड्स। फिर मैंने एकदम से लेट गो कर दिया, क्योंकि मुझे समझ में आया यार, आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली देयर फॉर एवरीबडी, लाइक लेजिट एवरीबडी। एंड इवन टिल नाउ, लाइक अगर मुझे कोई एक कॉल करता है, आई विल नेवर से लाइक हाँ मतलब आई एम टू बिजी और दिस और दैट, लाइक आई विल बी देयर, आई एम जस्ट लाइक या यू नो प्लीज टेल मी, and I'll help the person because I am a helpful person and I don't want to change that quality because you know of some experiences that I've had in my past. I realized that things have to reciprocate, और ये चीज़ हम इसीलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमारी मम्मियों ने ना, सच बता रही हूँ, बीइंग कमिंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, इतना नॉन स्टॉप सेवा करी है सबकी, सास ससुर, उनकी पूरी फैमिली की, सबकी, हर एक इंसान की सेवा करी है। तो आप वो देखते हो और आपको वो रियलाइज होता है कि ओके यू नो प्रोबेबली इवन इफ योर मॉम इज डिनाइंग यू डोंट हैव टू बिकम लाइक मी, बट बिकॉज यू आर सीइंग दैट एवरी सिंगल डे यू एंड अप बिकमिंग लाइक दैट। यू नो आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरा तो ये फर्ज है कि मुझे सबको खुश रखना है, इवन माई मूड इज नॉट देयर, बट यू नो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू से नो। बाउंड्री का फर्स्ट स्टेप ही है कि अगर आई हैव डिसाइडेड, अगर मैं थकी हुई हूँ, इफ आई एम नॉट इन अ कैपेसिटी मेंटल स्पेस, आई विल नॉट लिसन टू यू। आई हैव स्टार्टेड लर्निंग टू से नो, नहीं मुझे नहीं करना है, नहीं उनको, ट्रस्ट मी, एक बार बुरा लगेगा, 2 बार बुरा लगेगा, बट और आपको भी इनिशियली बहुत गिल्ट फील होगा उस चीज़ के लिए कि अरे यार मैंने इसको ना कैसे बोल दिया यार, हाउ कैन आई बी दिस मीन टू समबडी, आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक यू नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, ये वो फलाना ढिमकाना। लेटर you will understand that that was so important. A person who cannot respect your boundary, a person who cannot respect your no is of no use of in your life. उसका कोई महत्व नहीं है आपके जीवन में, क्योंकि जब आप खुद बाउंड्रीज बनाना सीखते हो ना, तब आप दूसरों की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना भी सीखते हो। मतलब पहले अगर मुझे, मान लो कोई मेरा दोस्त मुझे बोले कि नहीं मैं बात नहीं करना चाहता, अभी मैं थक गया हूँ, या you know like अरे can we talk tomorrow or anything of this sort, I used to be very angry and pissed. I was like how, you know, because it used to immediately convert into like oh he's rejecting me. जब उसने मुझे बैठ के ये समझाया that hey I am not rejecting you, I am not leaving you, I am really tired, I need some time off, I'll come back to you, तब मुझे समझा कि बॉस it is so important to have boundaries in life. Like it's just that nobody teaches you, like कोई नहीं सिखाएगा आपको, और ये सब आप अपनी गलतियों से सीखते हो, ये मतलब आपको कहीं से अपने आप कहीं कोई नहीं सिखाता ये। and whether you like it or not now, but I have actually learned how to say no more often, even to my family for that matter, you know. Like let's say for example I tell them like hey boss, I'm not in a zone to you know give you a rational answer to this question, or you know to have this argument or to this dwell into this conversation. They will not force me now, like genuinely, touch wood,
अगर कोई भी कॉन्वर्जेशन मेरे लिए स्पेशली ट्रिगरिंग होती है, आई जस्ट टेल माई मदर लाइक बॉस आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन एज ऑफ नाउ, आई डोंट थिंक सो. And I genuinely don't like, I walk out of it. And I feel like when you can do it with your own family, no, you can do it. वो चीज़ें घर से ही स्टार्ट होती है, मतलब आपको घर पे ही सबसे पहले वो बाउंड्री बनानी पड़ती है. वन थिंग विच हैज़ another thing that has helped me a lot with my empathy is actually cutting out news. Now whether you believe me or not, you'll call me stupid, you can call me whatever, but me being unaware sometimes helps me a lot with feeling okay and just keeping my empathy in check. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है. आई वॉज इन माई 5th year ऑफ लॉ. जब उस टाइम पर वो चल रहा था कि मेरे घर वाले मुझे कह रहे थे कि इंटर्नशिप कर लो, इंटर्नशिप कर लो, इंटर्नशिप क्यों नहीं करनी है, क्या करना है जीवन में, कहाँ जा रहा है जीवन. और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है, मतलब इतना बैड भी नहीं है ये करियर ऑप्शन, आई माइट एंड अप टेकिंग इट. फिर हमने करी एक जुवेनाइल जस्टिस केयर की विजिट. उसमें हम सब बस में 5th year लॉ के बच्चे हम सब जा रहे थे बस में बैठ के, और आई सी दीज पीपल कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले चिल्ड्रन, एंड आई हैव क्राइड, hugging my mother. I've cried for at least 3 hours, telling that I feel so helpless that I can't help them. I felt इतना ज़्यादा गिल्ट कि यार मैं इनकी मदद क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मैं why am I not able to get them out, like मुझे मैं नहीं चाहती कि लोग ऐसे सफ़र करें. तब मुझे रियलाइज़ हुआ there are, चांदनी, you don't have to sometimes dwell into like a piece of information where you will get overstimulated and your anxiety will trigger and your empathy which you have for people will trigger. I'm not saying कि अरे आप वो कबूतर बन जाओ कि बिल्ली आई तो मैं आँख बंद करके बैठ जाऊँगा. I'm not saying that. I'm just saying that I am kind of wanting to protect my peace. जैसे कोविड के टाइम पे हम सबको कैसे एक अजीब सी एंग्जाइटी हो गई थी सबको ही कहीं ना कहीं कि अरे यार ये क्या हो रहा है, राइट. लाइक स्पेशली जो मेरे जैसे लोग हैं जिनकी उनकी तो बैंड ही बज गई थी, मतलब पूछो ही मत. तो मुझे तब से रियलाइज़ हुआ दैट आई वॉन्ट टू कट ऑन न्यूज़. आई डोंट वॉन्ट टू कंज्यूम एक्सट्रीमली सैड मीडिया और दैट काइंड ऑफ अ थिंग. मुझे हैप्पी चीज़ें देखनी है, सो आई कैन बी हैप्पी एंड आई कैन स्प्रेड हैप्पीनेस. आई वॉन्ट टू वॉच समथिंग that gives me peace. And am I being selfish? Yes. At least I can afford to be selfish, will be my counter opinion. So it's just sometimes, अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि ओ I'm being too selfish, I am being this or I'm being that, you just have to understand that if you cannot protect your own peace, आप किसी का भला नहीं कर पाओगे जीवन में, किसी का भला नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सही नहीं रहेगा ना तो ये सही नहीं रहेगा, और ये सही नहीं रहेगा तो कुछ सही नहीं रहेगा. आफ्टर wearing the whoop, I've realized that the amount of cortisol level that has spiked up, the constant stress that I've been taking of the whole wide world, like मेरे कंधों पे जो इतना बोझ मैं लेके घूम रही हूँ, वो मुझे सब रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे. एंड it's great to be self-aware. It's genuinely good to be self-aware. Like I know the fact that okay, you know what, I cry too much, I laugh too much, I feel every single emotion too much, and I want to accept that. इस चक्कर में एक और ये चीज़ होती है जो आपको लगता है कि मैं इतनी I'm too much. आपको लगता है कि यार ये सामने वाला मुझे कैसे झेल पाएगा. फिर मुझे किसी ने, मेरे एक और थेरेपिस्ट ने मुझे समझाया कि चांदनी क्या करती है, मतलब मैं जाके सबको 100 रुपया बांटूंगी ऐसे, आप 100 रुपया ले लो, आप 100 रुपया ले लो, आप 100 रुपया ले लो. अब वो वापस मुझे 10 रुपया देते हैं तो मैं दुखी हो जाती हूँ, अरे आपने मुझे 10 कैसे दिए. पर आई हैव टू अंडरस्टैंड कि जिसके पास में सिर्फ 10 ही रुपये का बैंक बैलेंस है वो मुझे 100 रुपया कैसे देगा. Are you understanding what I'm saying? Like it is very important to understand that if I'm giving out too many emotions to another person, जिसके पास में वो डेप्थ ही नहीं है कि वो उतने इमोशंस को होल्ड कर सके या ले सके, तो वो ऑफकोर्स he or she will feel overwhelmed with that. He's like, oh my god, this is like, fuck man, this is too much, like I don't know how to handle this, I don't know how to handle this. It is going to happen. So it's not about, oh, you will be left alone in life or you won't find anybody in life. It's just that you have not met somebody जिसका डेप्थ प्रोबेबली शायद इक्वल मेच्योरिटी बोलो या EQ अच्छा बोलो या वॉट एवर आप बोलना चाहो उसे, उतनी ही लेवल की हो. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डोंट गेट वेरी ओवरवेल्म्ड until and unless it is about health anxiety. Like if somebody is like telling me about something about related to health anxiety, I keep my friends also very updated. Like don't tell me anything about health and all.
लाइक तू मुझे 5 नया कुछ बताएगा, मैं जाके मेरा दिमाग वहीं फंस जाता है फिर. सो डोंट टेल मी, आई डोंट वांट टू नो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार हाँ चलो मतलब ये चीज़ यहाँ से आ रही है. आई डोंट इवन नो इफ आई एम मेकिंग एनी सेंस राइट नाउ. आई फील लाइक आई एम ऑल ओवर द प्लेस. आई स्टार्टेड विद समथिंग एंड I started talking about something else and now I'm like talking about something else. This is what I've made, by the way, and I look very beautiful today. Since I have no guy to come and tell me that, you know, Chandni, you're looking extremely beautiful and hot. The one thing that is also going to help you a lot to regulate your emotions, by the way, is music. I can't stop talking about the fact that how much I dwell into music, how much I keep listening to music when I feel low. Not just feel low, but just to get me peace and just to make me feel like very good about myself. I take a lot of support of music, love dwelling into emotions, even getting in my character. Music helps. I like the bed sheet though. I don't mind buying one. So yeah, I'm gonna complete this. I'm gonna talk to you soon.